पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरपर्सन चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर आदर्श पाल विक सर को रिक्वेस्ट करूंगा सर आपके पॉइंट्स रखिए. So thank you, the organizer, my colleagues of pollution boards, chairman, member secretary, other officials, the industry, all the you can say invited persons, a galaxy of the audience. Very important things which already has been said by each and every speaker. I am totally agree with them, and everyone rather is committed to do those kind of things. But it has to be started, it has to be done at the ground level. That is, I think, lacking, or that has to be taken care or started. So because so much elaboration has been given, so I have little changed my orientation, so that didn't want to repeat those kind of things. So I generally speak regarding environment. So then I say two E's. And last time, 16th, we were there at Faith of Kumbh with UP government. And so there is always a fight of economics and environment. So who is going to win? So everybody understand, always economics is going to win. So then there is a development model of every word or every state or every country. So then it is always economical model. I have never seen a model. Then the thought can be, it will be a balanced kind of thing. We'll take care of nature and environment and so on. Nothing happened on the ground. Okay, so now it is our turn. We all belong. We are not getting a fight, but environment taking a zero, you can say, kind of thought is not acceptable. You will die, you will finish everything. The word will no longer. You can talk of Delhi, you can talk of so many countries, polluted sites and everything. So this is going to happen. So my request to you is environment first. Maybe you are a government, maybe you are an industry, maybe you are institution, maybe you are individual. So आज से क्या बोलना आपने? Environment first. So will it be done like this? बोलने से हो जाएगा? Then who will correct? So then again, myself will correct. It is my responsibility. I cannot blame anybody. I am the polluter and I will have to correct myself. Or rather, in other words, you have to start with your own self-responsibility, self-regulation. If I am a pollution board chairman, if I am an industrialist, I am the owner, even I am running a individual system. So क्या करना है जी? Self regulation. दूसरों को रेगुलेशन पढ़ाने की जरूरत नहीं. Just स्टेज पे खड़े होकर बोलते रहो जितना बोलना है. But technically ठीक होना है तो क्या करना पड़ेगा? Self regulation. Circular economy is right, and I am also saying that this is only a new word which is given to you. Otherwise, it is a behavior of traditional Indian living system. What you have done, you have entered into a Western culture of use and throw. आपने adopt कर लिया है knowingly, unknowingly, कैसे भी. How to shunt it out, उसको कैसे खत्म करना है? This is the challenge. Circular economy is nothing word. It was a system in everyone. बड़े भाई के कपड़े छोटा कपड़े पहनता था. मेरा पेन, मेरी पेंसिल नीचे जाएगी. हमारी वो पेंसिल जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचती थी हम छोड़ते नहीं थे. जो टूथब्रश, टूथपेस्ट में से वो पूरा निकलेगा नहीं. The undergarments, ये वो everything, nothing was. I always ask segregation की बात की. He was showing this system of segregation and vehicles. It has been taught to me as well. I was also teaching solid waste management. But the answer is zero waste. कुछ नहीं होगा segregation से, कुछ नहीं बनने वाला. And use biological systems. Technology, जैसे e-vehicle की बात आ रही थी, he was saying that you are using the coal and other kind of things. So natural systems.
they can correct. And in solid waste, zero waste, reduction of waste, reduction भी zero waste. And then आप कहेंगे ये ऐसे कैसे हो सकता है जी? आप अपने दादा नाना, you think of your grandparent home, rather अपना ही देख लो जो 50-60 से ज्यादा है, like me. Was there a dustbin in your home? बताओ, तो ताली बजाओ। आप अपना मतलब बताओ ना, डस्टबिन ही नहीं था तो कहां था वेस्ट? हाँ वही कुछ क्या नहीं, बैग थे, वो थैला था, वो थैला और लोटा कल्चर हमारा है, उसको भूल गए हम, पानी भी वेस्ट करना शुरू कर दिया और वेस्ट जनरेट करना शुरू कर दिया। मैं बड़ी सिंपल बात करता हूं, अब मैं तो कोई साइंटिफिक जाने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज नॉट ए साइंटिफिक वे ऑफ सेग्रीगेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, ये वो ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज टोटली रबिश, कुछ नहीं होने वाला है। आप देख रहे हो 30-20 साल निकाल दिया आपने, 20-30 साल और निकाल दो, ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते रहेंगे। मोर टाइप्स, मोर कैटेगरीज, मोर अमाउंट ऑफ वेस्ट इज बीइंग जनरेटेड। जितनी मर्जी रिसर्कुलरिटी की बात हो रही है, अगेन ऑन वही बात जो ग्राउंड पे नहीं हो रही, इसलिए वो गड़बड़ हो रही। वेयर द थिंग्स वर गोइंग, फिर नहीं था डब्बा तो फिर अब क्या जी, लाल डब्बा, काला डब्बा, पीला डब्बा, हरा डब्बा, ये डब्बा, वो डब्बा। नॉट सॉल्व प्लीज, दिस इज नॉट राइट। ये हमें कौन पढ़ा गया, किसने पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, ये यू हैव टू थॉट, थॉट क्या ठीक करना पड़ेगा। चलो पहले डिस्कशन होगी फिर ठीक होगी। आर सर ने बताया बढ़ गए आर, सो ठीक है, वो आर को फॉलो करना ठीक है जी। तो ये चीजें हैं जो सोल्यूशन है, बट स्टिल अब जहां पे बैठे हैं ईपीआर और ये बातें आ रही हैं, सो उसको कैसे करना है, कैसे ठीक करेंगे, दिस इज द इशू विद अस। तो बाकी ऑलमोस्ट आई थिंक द थिंग्स आर सेम। हाँ, इसमें प्लास्टिक, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द फ्यू थिंग्स। सो प्लास्टिक आप फिर कहेंगे जी, अब मैं कहता हूं प्लास्टिक से पहले लाइफ नहीं थी। आई एम नॉट पुशिंग में क्या करना है, ईपीआर करना है, ये करना है, वो करना है। प्लास्टिक से पहले और एनी न्यू थिंग विच प्लास्टिक हैज गिवन टू यू, कुछ नहीं दिया उसने नया। प्लास्टिक से पहले भी पैकिंग होती थी, प्लास्टिक से पहले भी पानी पिया जाता था, प्लास्टिक से पहले भी फूड खाया जाता था। अब प्लास्टिक वाला फूड आपके हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। हाँ, आप डिस्कशन में करेंगे सर, सॉरी मैं, हाँ प्लीज, क्योंकि वो मुझे लगता है अदरवाइज, हाँ इसलिए मैंने भी बहुत सी चीजें छोड़ी हैं बीच में, जस्ट हाईलाइटिंग द थिंग्स सो दैट वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। सो प्लास्टिक इसको रीयूज करना तो गलत है, ये यूज करना ही गलत है, तो रीयूज तो करने का फायदा नहीं। इट शुड बी स्टॉप्ड बिकॉज इट जनरेट हैलेट्स, डायोक्सिन्स एंड what recycling, you challenge me, only 5 to 10% is the recycling। कोई आ जाए मुझे डाटा बता दे। तो a lot of good things are there in system, recovery करनी चाहिए। So I was having certain ये जो आपने hazardous and other waste management में there are SOPs under rule 9, तो इसमें मेरे पास जो 101 SOPs बनी हुई है CPCB की, आपने देखी होंगी, बट टेक्निकली नहीं हो रही उसमें। इवन आई ट्राइड में भी फ्यू रिकवरीज सॉल्वेंट्स की है, बाकी चीजों की है, yes। तो वो सिस्टम्स को लागू करना नीचे, सो दैट इज द इशू। EPR इज अ गुड थिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एवरीथिंग, दीज आर द गुड, बट हाउ टू मैनेज द कमिंग बैटरीज, ये वही बात सारी वो वेस्ट के साथ ही जुड़ती है। इफ वी हैव नॉट सिस्टम्स, एक तरफ ई व्हीकल प्रमोट कर रहे हैं, आई आल्सो इशू द सेम इशू, बट ई वेस्ट, ई व्हीकल का एक थोड़ा, दिस इज द गुड आइडिया दैट दे हैव डिक्रीज द एयर पोल्यूशन ऑन द रोड्स। वो सोर्स में से कहाँ आ रहा है, दैट नीड टू बी करेक्टेड, बट एटलीस्ट जो आपके एयर क्वालिटी सीधा आपके नाक में जा रहा था वो थोड़ा रुक गया, बट ई वेस्ट, ई व्हीकल्स आर गुड, बट अगेन विद द कॉशन ऑफ मैनेजिंग द बैटरीज। वो ना हो आज तो हमें कूड़े के पहाड़ नजर आ रहे आते समय में,
बैटरियों के पहाड़ नजर आएंगे जब वो सारे बाहर आएंगे, ठीक है जी। सो इनको थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी यूज्ड ऑयल, ये वो सारे इश्यूज हैं। स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर्स, उनको ट्रेन करना, रिसाइकलर्स, कंज्यूमर हैज ए रोल, द एनजीओज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन। वो सर ने बताई है सारी लॉज एंड पॉलिसीज हैं, collaborations and awareness, everything is there. The last I will just give few examples of Punjab only. ये सारी जनरल बातें जो मैं डिस्कस कर, Punjab, before me there was a plastic Punjab Plastic Waste Management Society who's managing MLP. वो बहुत पहले शुरू कर दिया था हमने 2017 में. It has been a SPV बनाया हमने उसमें. तो 37 these big PepsiCo, Britannia, पतंजलि, वेरका, ये सब जुड़े हुए हैं, MLP इकट्ठा होता है. बट स्टिल मैं ऐसा नहीं कह सकता भाई पंजाब में इट्स अ गुड वर्क. इट्स ए सम बिगिनिंग, बट स्टिल यू विल फाइंड प्लास्टिक एवरीवेयर, MLP एवरीवेयर. तो ये काम कुछ कर रहे हैं तो एवरीबॉडी कैन. सो दिस इज 50,000 मीट्रिक टन उनका टारगेट है. एवरी टाइम दे हैव मेड कलेक्शन सेंटर्स एंड लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स. एक पराली है पंजाब में, है ना. So in that we have been able to get a success in terms of ex situ management. There are two broad 20 million ton. Out of that, in the recent past, 1 million ton was only ex situ management. Now we have 6 million ton. इतना बढ़ गया 2 सालों में. We are making briquettes, pellets, CBG plants, and that electric generation power plants from the and use of parali in the boilers, industrial boiler to generate steam and electricity. वो दोनों में काम आ रहा है. ये एक अच्छा aspect है, but still it's not that good because the parali should be, carbon should remain in the field. In situ is the real answer. But क्या करें, मजबूरी है. CA का प्रेशर है, खत्म करना है. तो उतना इन सिचु नहीं हो रहा जितना एक्स सिचु. इसमें मैं कह रहा हूँ इवन रिसाइकलिंग इज ए डेंजरस थिंग. ये ना हो कोई ऐसी रिसाइकलिंग कर दे बाद में वो गड़बड़ हो जाए. सो इसमें बट वो कोई रास्ता नहीं अभी तक, तो वो कर रहे हैं. देन इन पंजाब वी हैव ए मंडी गोबिंदगढ़. इट्स स्टील सिटी ऑफ एशिया. सो देयर वी हैव फैसिलिटी टू रिकवर जिंक. पहले वो पैसे देते थे फेंकने के, अब उनको पैसे मिलते हैं जिंक, वो जो स्लैग निकलती है उसमें. तो दैट इज ए गुड थिंग. बट उसमें भी कई नॉन कंप्लायंसेस, स्टोरेज, ये वो बड़े इश्यूज आते हैं. तो बट इट नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड. इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन दिस लुधियाना वी हैव ए द साइकिल इंडस्ट्री, हीरो साइकिल, एटलस, सारे वहीं पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग. मतलब थाउजेंड्स ऑफ थिंग ऑफ दैट. HCl रिकवरी, सल्फ्यूरिक एसिड रिकवरी. बट स्टिल लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन उसमें. और वही जो रिकवरी वाले वी आर लुकिंग गुड. तारापुर हम गए थे मुंबई में, तो देख के आए. द लास्ट इज द वी हैव बीन एबल टू इंस्टॉल ZLD इन बिग डाइंग इंडस्ट्रीज. आपने ड्यूक का नाम सुना होगा, मोंटे कार्लो, वर्धमान, ये वो सारे. तो दे हैव अर्लियर दे वर नॉट एग्रीइंग, बट वो रिसेंटली दे हैव एग्रीड और दे हैव बीन पुटिंग द ZLD so plant. So thank you very much. धन्यवाद जी आपका सुनने.